Hi, dear friends. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of TYBCom Economics. Belated wish you all a happy Friendship Day and happy Raksha Bandhan. I hope all of you are safe and staying at home only. Dear friends, we have already started with our first module. In that, we have completed our first chapter, that is New Economic Policy 1991. In that, we have covered to solve the basic three problems of our economy, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में था, फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ चुका था और कोई इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था. टू सॉर्ट आउट ऑल दिस प्रॉब्लम्स वी हैव brought down new economic policy, and in that we have covered some of the reforms like industrial sector reforms, capital sector reforms, financial sector reforms, banking sector reforms, public sector reforms, trade and capital reforms. Okay, so that was the theme, to grow our economy gradually. So in the year of 1991 we came up with new economic policy 1991. That was the introduction part covered by chapter 1. Today we are going to start with our chapter 2 of module 1, and that is part 1 of chapter 2, that is social infrastructure, which consists of education, health, family welfare in India. Dear friends, let me introduce the word infrastructure development. It means structural construction from the base till the height. That is known as infrastructure. Friends, the word infrastructure is broadly classified into two categories. One is economic infrastructure, which needs lots of capital investment, construction of road, highways, dams, bullet train project, tunnels, metro, flyover bridges. So there is economic infrastructure. Another one is social infrastructure, which you cannot buy with the help of money. Friends, it consists education, health and family welfare. Remember one thing, you can buy a book from the market after paying the money, but you cannot buy a degree, you cannot buy an education, you cannot purchase a qualification. आप किताब खरीद सकते हो, आप क्वालिफिकेशन पढ़ाई नहीं खरीद सकते हो. That you have to do, पढ़ाई खुद को करनी पड़ती है, हम खरीद नहीं सकते फ्रेंड्स. सिमिलरली हेल्थ, जिसकी मुझे सख्त जरूरत है, एजुकेशन की आपको सख्त जरूरत है, हेल्थ की मुझे सख्त जरूरत है. बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं बोल पाऊंगा कि मैं आप सबको 1000 रुपया दे रहा हूं, आप सब अपना आधा किलो वजन मेरे को दे दो. आई कैन नॉट परचेज द हेल्थ फ्रॉम मार्केट. I can purchase medicines, I can have treatment by paying the money, but I cannot purchase health from the market. वो हमें खुद को संभालनी पड़ती है फ्रेंड्स. एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार नियोजन योजना, ये कभी हमने सुना हो, पूरे फैमिली का वेलफेयर, समृद्धि. तो इंडिया की गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आफ्टर द ईयर ऑफ 1991 we have consisted three basic concepts, that is education, health and family welfare under social infrastructure. So let's begin with introduction to social infrastructure. Its resources needs to be utilized in an optimum manner, which depends upon social infrastructure. Friends, optimum manner, whatever resources we have in our country,
forest, mines, ocean, rivers, climate, whatever. We have to utilize all these resources in maximum level, at maximum level, in optimum manner. And it depends on social infrastructure. It consists of programs, policies that maintains and improve standard of living and equality of life of people. गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ते हैं, कुछ पॉलिसी रिफॉर्म करनी पड़ती है, तब जाके हम गरीब से गरीब बंदा जो है कंट्री के अंदर, ओके, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग लास्ट इन द रो, गरीबी के हिसाब से जो सबसे गरीब तख्ते पे खड़ा है, वहां तक वो प्रोग्राम तक उस प्रोग्राम को पहुंचाना, अपनी पॉलिसी को उतना इफेक्टिव करना कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू उस बंदे का लाइफस्टाइल जो है वो इंप्रूव हो जाए, वो अपने आप को टिका पाए जीने के लिए और अच्छे से जीने के लिए. लेट मी गिव यू वन practical example for this. Friends, in the year of 2014, 15th August, when Narendra Modi gave his speech for the first time after becoming Prime Minister, पीएम बनने के बाद उनका जो पहला स्पीच था 15 अगस्त को, वो स्पीच की जो शुरुआत थी फ्रेंड्स, इट वॉज फ्रॉम शौचालय. जहां सोच है वहीं शौचालय है. So many educated people during that period laughed at नरेंद्र मोदी कि ये इंडिया के पीएम बनकर शौचालय से कंट्री को डेवलप करेंगे. फ्रेंड्स, दैट वाज द ओरिजिन ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. गांव में आज भी अगर लोग शौचालय के लिए ट्रेन की पटरी यूज करते हो या हाईवे का ब्रिज इस्तेमाल करते हो, इवन इन मुंबई सिटी वी कैन सी सो मेनी पीपल इन मॉर्निंग टाइम. ओके, तो फिर आपका सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है. सो फॉर दैट पर्पज वॉट एवर रिसोर्सिस वी हैव टू यूटिलाइज दैट रिसोर्सिस इन ऑप्टिमम मैनर, मैक्सिमम लेवल पे उसको रिसोर्सिस को यूटिलाइज किया जाए, ताकि गरीब के घर तक भी, उस गरीब बंदे के घर तक फ्रेंड्स शौचालय, टॉयलेट को पहुंचाया जाए. और तब जाके अक्षय कुमार को टॉयलेट जैसे मूवी का कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है. फ्रेंड्स, इट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके फ्रेंड्स, सो एक शौचालय की सोच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमें फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें इसकी कदर नहीं है क्योंकि हमें आसानी से मिल जाता है. लेकिन गांव में जिनके घर नहीं है, जब उनको पता चले कि जंगल तक जाना पड़ता है फ्रेंड्स लोटा लेकर, तो उनको टाइमिंग देखना, फिर उनकी तबीयत इंपॉर्टेंट नहीं है, गांव में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि कोई एक लेडी कब घर से निकल के शौचालय जा पाएगी, तब तक उसको कंट्रोल करना है, तब तक उसकी कितनी बीमारी उसके स्टमक में क्रिएट हो जाती होगी, कितने बैक्टीरिया आ जाते होंगे. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स. तो यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को शुरू किया गया फ्रेंड्स इन द ईयर ऑफ 2014. पर 1991 के बाद ही हमें ये महसूस होने लगा था कि वी नीड ऑल दीज थिंग्स. ओके फ्रेंड्स, सो दैट वाज इंट्रोडक्शन टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ आवर टॉपिक इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया. फ्रेंड्स, ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक्सक्लूसिव ग्रोथ मतलब ग्रोथ बाहर से होना, मतलब ज्यादा चीजों को जोड़ा जाए, यू कैन एक्सटेंड फॉर डेवलपमेंट पर्पस. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब वॉट एवर रिसोर्सिस यू हैव, आपके पास जो चीजें हैं उसी सर्कल में जो चीजें अवेलेबल है उस पर कुछ बढ़ावा नहीं किया गया है, उसी को बेस्ट यूटिलाइज करके आप तरक्की पा रहे हो. तो इट इज इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. Social sector included the public distribution system, government funded primary and higher educations, health and family welfare infrastructure in urban and rural areas. Let me clarify all these terms in brief now. सोशल सेक्टर जब हम बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर
टर्सरी सेक्टर, ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये जो हम बोलते थे, तो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री, तो सोशल सेक्टर बोले तो सोशल सेक्टर का मतलब वहीं पर क्लियर हो गया था। ओके फ्रेंड्स, सोशल सेक्टर जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों को सोचा जाए जो पैसों से नहीं खरीदा जाएगा। फ्रेंड्स, आपका परिवार कितना खुश है, ओके, वो पैसों से नहीं कंपेयर होता है। भले हम छोटे से खोली में रहते हो, पर अगर पूरा परिवार हंस खेल रहा है, सब ठीक ठाक है, हर कोई एवरेज पढ़े लिखे है, कोई बीमार नहीं है घर में, तो वी बिकम मच मोर हैप्पियर देन रिच ऑफ पीपल। तो सोशल सेक्टर इंक्लूडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज रेशनिंग की दुकान, जहां पे सस्ते में अनाज मिलता हो, शक्कर और तेल मिलता हो। अगर आपको अभी पता हो तो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीएम हैज अनाउंस दिस पॉलिसी कि अब वन रेशन वन नेशन, मतलब आपका रेशन कार्ड कोई भी स्टेट का हो, अगर आप कोई भी स्टेट में अभी हो तो यू कैन गेट योर ग्रोसरीज फ्रॉम रेशनिंग शॉप बाय शोइंग द सेम रेशन कार्ड। आपको रेशन कार्ड का एड्रेस भी नहीं बदलना है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको इंक्लूड करके इंप्रूव किया जाए ताकि गरीब से गरीब बंदे तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल ये पहुंचाया जाए। राइट, गवर्नमेंट फंडेड प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आई डोंट नो कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता भी है कि नहीं, मैं कोई म्यूनिसिपल स्कूल में नहीं था फ्रेंड्स, एंड देन टू माई फी स्ट्रक्चर वॉज, जो स्कूल में मैं पढ़ा हूं, वेरी नाइस स्कूल, मैं नाम नहीं बोल पाऊं, बट फ्रेंड्स वेरी नाइस स्कूल, और वो कोई म्यूनिसिपैलिटी स्कूल नहीं थी, उसके बावजूद भी उसकी जो फीस थी वो कोई बीएमसी स्कूल नहीं थी। देन टू द फी स्ट्रक्चर वॉज, व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड तो महीने का 5 रुपया फीस था, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड तो महीने का 6 रुपया फीस था। और फ्रेंड्स, मैं आज के जमाने, मैं कोई आत्माराम तुकाराम भिड़े के जमाने का नहीं हूं, आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन ओनली। अभी तो बहुत छोटी एज है मेरी, तो आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन ओनली फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच पाए तो इट इज गवर्नमेंट फंडेड। देखो, अगर आपको मैं आपके लेवल पे समझा पाऊं तो लॉर्ड्स कॉलेज की जो फीस होगी इट इज नियर टू 35,000, ठाकुर कॉलेज की फीस होगी नियर टू 25,000। फ्रेंड्स, मीठीबाई कॉलेज की जो फीस है, मीठीबाई कॉलेज की जो फीस है इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट 5,000 ईयरली फीस फॉर डिग्री कॉलेज, एंड फॉर जूनियर कॉलेज जस्ट 700 रुपीज, बिकॉज इट इज गवर्नमेंट फंडेड। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इफ यू आर ब्रिलियंट इन स्टडी तो आपका एजुकेशन का जो खर्च है वो गवर्नमेंट उठाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो चीजें हैं तो प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। फ्रेंड्स, बीकॉम की फीस सबसे कम है। द रीजन इज बीकॉम इज सब्सिडाइज कोर्स बाय मुंबई यूनिवर्सिटी। बेफ और बीएमएस की फीस ज्यादा है, इसलिए नहीं कि वो कोर्स अच्छे है, बीकॉम की फीस इसलिए कम है फ्रेंड्स क्योंकि गवर्नमेंट खुद आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप भवन जैसी कॉलेज में है, अगर आप तोलानी जैसी कॉलेज में है, आपका फीस बहुत नॉमिनल फीस है फ्रेंड्स। पाटकर कॉलेज में बहुत नॉमिनल फीस है। द रीजन इज गवर्नमेंट फंड कर रहा है उनको कि बच्चे को पढ़ने दो, उसको डिग्री हासिल करने दो, आधा खर्चा हम उठाएंगे, आधा खर्चा स्टूडेंट से कलेक्ट करो। तो इट इज गवर्नमेंट फंडेड प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, हेल्थ के लिए 2 बूंद जिंदगी की पोलियो, ये आपने और मैंने सबने लिया हुआ है फ्रेंड्स, एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फैमिली वेलफेयर के लिए, ओके फ्रेंड्स, आई डोंट नो कि मुझे वर्ड यूज करने भी चाहिए कि नहीं, नसबंदी का जो ऑपरेशन बीच में शुरू हुआ था कुछ सालों पहले, यूपी बिहार में इसकी बहुत जरूरत पड़ी थी, और ये ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया फ्रेंड्स, ताकि और बच्चे पैदा ना करे लोग। ये बात अलग है कि आज भी अगर फैमिली के साथ में बैठ के अगर आप ये सुन रहे हो तो ताना मारा जाएगा, हाइला सर ऐसा सब सिखाते हैं। बट फ्रेंड्स, इट इज मस्ट नाउ। छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे, ये सिर्फ टीवी की एड के स्लोगन नहीं है फ्रेंड्स। इसके लिए गवर्नमेंट काफी कुछ खर्चा कर चुकी है। बहुत सारे स्टेट्स में नसबंदी का ऑपरेशन फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका काफी खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया था। ये पोलियो की 2 बूंद अपने को फोकट में पिलाई है, पर गवर्नमेंट ने इसके लिए एवरी ईयर फ्रेंड्स 12,000 करोड़ का खर्चा किया था एवरी ईयर। तब जाके आज हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि आज पूरे इंडिया में फ्रेंड्स
देयर इज नॉट एनी सिंगल केस ऑफ पोलियो सिंस लास्ट 4 years. पिछले 4-5 सालों से पोलियो का एक भी नया केस दर्ज नहीं हुआ है फ्रेंड्स. तो ये जो चीजें हैं, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर तक हो गया, इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, छोटे से छोटे गांव तक इसको पहुंचाया गया फ्रेंड्स. ओके, और फॉर दैट पर्पस ये सब चीजों में बदलाव लाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेशनिंग की दुकान में बदलाव लाना है, एजुकेशन में बदलाव लाना है, म्यूनिसिपल स्कूल कॉलेज खोलना है, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल कॉलेज खोलना है, करेक्ट. सम हेल्थ में पोलियो की प्रोग्राम पॉलिसी शुरू करनी थी, 2 बूंद जिंदगी की लेकर, शौचालय की सोच शुरू करनी थी, फैमिली वेलफेयर को लेकर, ताकि छोटा परिवार, सुखी परिवार रह पाए अच्छे से, करेक्ट. तो इन सब चीजों को लेकर जब बात की गई फ्रेंड्स, तो यू विल रियलाइज दिस कि इसको गांव गांव तक पहुंचाया गया, शहर शहर तक पहुंचाया गया. एंड फॉर दैट पर्पज वी मेड सम चेंजेस. तो सम ऑफ द चेंजेस सच एज, फ्रेंड्स, अब ये जो चेंजेस लाए गए हैं, ओके, ये चेंजेस हमें एक एक करके समझने हैं. फर्स्ट ए इज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ increased, making these services more expensive. हाँ, ये बात सच है फ्रेंड्स. अगर आपका कभी ऑब्जर्वेशन अच्छा हो, अब भी मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं जिस स्कूल में था, बराबर है, वो स्कूल का महीने का फीस 5th स्टैंडर्ड का 5 रुपया, ऐसा 10 तक महीने का 10 रुपीज. द कॉलेज विच आई हैव स्टडीड इन, ओके फ्रेंड्स, उसका TY BCom का ईयरली फीस 1500 रुपया था. TY BCom का ईयरली फीस विथ IT विथ कंप्यूटर. एंड आई रिपीट कि मैं बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ा हूँ, नाम नहीं बोल पाऊँ, एथिकली आई शुड नॉट अनाउंस एनीथिंग, लेकिन आज भी मुंबई की टॉप 5 में उसका नाम है फ्रेंड्स. तो कहीं ना कहीं द कॉन्सेप्ट इज, ये चीजें गवर्नमेंट फंडेड हुई, लेकिन उस वक्त गांव गांव तक पहुंचाने के पर्पज से, सभी लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने के पर्पज से, सभी लोगों तक हेल्थ सर्विस पहुंचाने के पर्पज से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया. पर उसका एक साइड इफेक्ट हुआ फ्रेंड्स. दिस सर्विसेज बिकेम सो एक्सपेंसिव, ये काफी महंगी सर्विस साबित होने लगी. लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जांपल. अगर आपने कभी सुना हो ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, फिर ये सब स्कूल की आप फीस अगर देखो, 9th स्टैंडर्ड की 1 साल की एक बच्चे की फीस 4.5 लाख रुपए है फ्रेंड्स. मेरा टोटल जो एजुकेशन का खर्चा है ना फ्रेंड्स, इट इज जस्ट 45,000 रुपीज. टोटल बोल रहा हूं, फ्रॉम जूनियर KG टिल हायर एजुकेशन, वॉट एवर स्टडी आई मेड इन माई लाइफ, टोटल स्पेंडिंग इज 45,000 रुपीज ओनली. और यहां पे ओबेरॉय इंटरनेशनल फ्रेंड्स 4.5 लाख रुपया 1 साल की फीस है, एक बच्चे की 9th स्टैंडर्ड की. तो इट बिकेम सो एक्सपेंसिव. अगर हम कभी समझ पाए कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल्स, ब्रिज कैंडी, नानावती, कभी हमने नाम सुने हो, अभी अमिताभ बच्चन कोरोना के लिए एडमिट हुए थे नानावती. फ्रेंड्स, दिस हॉस्पिटल्स आर सो एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव. अगर हम कभी कंपेयर करें, आपके नजदीक के एरिया में होली स्पिरिट नाम का हॉस्पिटल हो, ओके, उसको आप कंपेयर करो ब्रिज कैंडी के साथ. जो ऑपरेशन ब्रिज कैंडी में 12 लाख का होगा, होली स्पिरिट में 4 लाख में होगा. तो इट बिकेम सो एक्सपेंसिव. हाँ, ये बात सच है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गया, सभी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी इसमें इंक्लूड होने लगी, पैसे डालने लगी, पर ये सर्विसेज बहुत कॉस्टली प्रूव होने लगी. तो दैट वाज द फर्स्ट चेंज, दैट इज ए. ओके, आवर पॉइंट बी इज गवर्नमेंट began to reduce subsidies and support to the social sector in relative terms, though the actual expenditure increased. Subsidies, अब भी मैंने कहा कि आपकी बीकॉम की फीस सब्सिडाइज फीस है, मतलब थोड़ा सा खर्चा गवर्नमेंट निभाती है. अपने घर पे जो गैस का सिलेंडर आता है, गैस का बाटला सिलेंडर, राइट, उसके ऊपर एवरी मंथ कुछ रुपीज, नियर टू 300 रुपीज गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे करके ये सब्सिडीज को कम करने की बात कर रही है कि सब्सिडीज हम कम करते जाए. देखो, अपने पास 600 रुपया
डेटा पैकेज के लिए होते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे पास सिलेंडर के लिए नहीं है, केबल के लिए पैसा होता है, सिलेंडर के लिए नहीं है, इंटरनेट के लिए होता है, सिलेंडर के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट बोल रही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हमें सिलेंडर हर घर तक पहुंचाना है, फॉर दैट पर्पज वी नीड मनी। तो वो सब्सिडीज कम करने की बात कर रहे हैं, पर सामने दूसरी चीजों को बढ़ावा देने के लिए वो पैसे तो खर्च हो ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मोदी ने कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, नियर टू 3-4 ईयर्स, ओके, कहा था कि जिनको भी सिलेंडर परवड़ता है प्लीज आप अपनी सब्सिडीज गिव अप कर दो। फ्रेंड्स, मैंने अपनी सब्सिडीज गिव अप कर दी। अब मैं गैस का सिलेंडर जो खरीदूं तो पूरा पैसा देता हूं, मुझे गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे से इतना अफोर्डेबल होता है, राइट। तो वो जो पैसे गवर्नमेंट को मिले, गवर्नमेंट ने क्या किया, गांव गांव में शौचालय बनवा दिए। अगर आप कभी इंक्वायरी कर पाओ, यूपी बिहार में बहुत सारे गांव में मैं पूछ चुका हूं फ्रेंड्स, जहां पर 6-6 हजार रुपए एक एक घर को दिए गए शौचालय बनाने के लिए, और सच में वहां तक पैसा पहुंचा है फ्रेंड्स, रियलिटी में पहुंचा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कागजत में दिखाई दिया। तो गवर्नमेंट ने एक बार जो सब्सिडीज कम किया है, अपना खर्चा कम किया है, पर एक्चुअल खर्चा बढ़ा है, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, शौचालय खोलने के लिए, बहुत सारी और म्यूनिसिपैलिटी स्कूल ओपन करने के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। तो दैट वाज आवर पॉइंट बी। आवर पॉइंट सी इज with reduced role of the public sector, job security in formal industrial sector came down significantly। ये एक और बड़ी दिक्कत हो गई फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि हम पब्लिक सेक्टर कम करेंगे, तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर से पैसे तो आने लगे, पर दिक्कत ये हुई फ्रेंड्स कि जो प्राइवेट कंपनी मालिक बनेगी वो गवर्नमेंट में जितना जॉब देती थी उतना जॉब तो नहीं देगी, क्योंकि गवर्नमेंट में 4 लोग मिलकर जो जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में एक बंदा वो काम कर लेगा। तो लोगों की जो जॉब सिक्योरिटी थी उसके ऊपर डेंजर जोन तलवार लटकने लगी फ्रेंड्स। तो ज्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों की नौकरियां जाने लगी और ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, विच लीड्स टू हैवी अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। फ्रेंड्स, क्या होता है, गवर्नमेंट क्या सोचती है कि थोड़ी ना मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक बार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ज्यादा लोगों को जॉब दे देती है कि भाई चलो सबको पगार देते रहेंगे, भले काम ना हो। पर प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करेगा। जब आप प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट होते हो तो जो मालिक है वो प्रॉफिट मोटिव के साथ आता है इंडस्ट्री को संभालने के लिए, तो फिर उस बंदा की सोच ये होती है कि मैं ज्यादा लोगों को काम क्यों दूं, जब 4 लोगों का काम एक बंदा करेगा, उसको पगार बढ़ा देता हूं थोड़ा, तो बाकी के 3 लोगों का सैलरी बच जाएगा। तो उसका इफेक्ट ये हुआ फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट सेक्टर कम होने की वजह से जॉब सिक्योरिटी पे एक डेंजर जोन आ गया, एंड इट केम डाउन वेरी सिग्निफिकेंटली। दैट वाज पॉइंट सी। पॉइंट डी इज informal jobs increased but with much less security. This reduced the guaranteed welfare benefit to the poor. फ्रेंड्स, अब आसान सा मतलब समझा पाऊं तो इस बात का, लीगल सेक्टर जो था, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो था, उसमें जॉब कम होने लगे, इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब बढ़ने लगे। अपनी सोसाइटी का वॉचमैन, अपना कार वॉशिंग करने वाला, बाइक वॉशिंग करने वाला, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर है, इसमें जॉब बढ़े बट विथ मच लेस सिक्योरिटी, क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में से वॉचमैन को कब निकाल दोगे इसका कोई गारंटी नहीं होता। आप अपने कार वॉशरमैन को कब निकाल दोगे जॉब से उसका कोई गारंटी नहीं होता। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बराबर है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर से मेड को, सर्वेंट को निकाल दिया, करेक्ट, उसकी कोई जॉब गारंटी तो है नहीं। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब तो बढ़े और वो सिक्योर जॉब नहीं थी। मतलब इंसान के ऊपर कभी भी तलवार लटकेगी कि मुझे कभी भी फोन आएगा और बोल दिया जाएगा कल से मत आओ, तो उसकी कोई जॉब गारंटी नहीं थी। अब जब इनकम की कोई गारंटी नहीं है आपके पास, तो आप ज्यादा खर्च भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। तो अच्छे घर में रहना, अच्छे से रहना, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपकी सिक्योर इनकम कितनी है, कब आपका जॉब छूट जाए पता ही नहीं है। तो ये एक और बड़ी दिक्कत प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इकोनॉमी में दिखने लगी। फ्रेंड्स, आज की तारीख में 40 करोड़ लोग इंडिया में लोग ऐसे हैं
जो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन द फैक्ट इज आफ्टर सम 2 months व्हेन वी स्टडी ऑल दिस थिंग्स कि अब क्या हुआ, यू विल रियलाइज दिस कि करीब करीब 40 करोड़ लोगों की इनकम पे फ्रेंड्स लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट आया है। उनका कोई जॉब सिक्योर नहीं है, कोई इनकम सिक्योरिटी नहीं है। तो ये एक और बड़ी दिक्कत ने वहां पे एग्जिस्टेंस ले लिया। ओके, तो दैट वाज पॉइंट डी। नाउ और पॉइंट ई इज ड्यू टू increased privatization of social sector, many of the services like education, health, insurance had to be purchased at market determined prices which became unaffordable to the poor। फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। हमने ये बोल तो दिया कि ओबेरो इंटरनेशनल, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल ऐसी स्कूल खुल गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ गई, करेक्ट, कोकिलाबेन अंबानी, ब्रिज कैंडी, लीलावती, सब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स आ गई। पर क्या ये गरीब लोगों के लिए क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वहां पे एजुकेशन या हेल्थ ट्रीटमेंट ले पाए? द आंसर इज नो। मतलब गवर्नमेंट ने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया पर वो गरीब इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं हुआ। द फैक्ट इज कि आज भी अगर किसी को बोला जाए कि कोरोना है, अब देखो कोरोना के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, मानता हूं। देन टू अगर आप कभी मार्केट में ऑब्जर्व करो फ्रेंड्स, हम ये सुनते हैं कि एक कोरोना पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल प्राइवेट बोल देती है 8 लाख रुपए रखो, 5 लाख रुपए डिपॉजिट करो, जबकि कोरोना की कोई दवाई तो मिली नहीं है। फ्रेंड्स कोरोना का एक सिंपल सा रिपोर्ट निकालना है तो कहीं पे 4,500 रुपये चार्ज है, कहीं पे 3,000 रुपीज चार्ज है। एक सिंगल रिपोर्ट निकालना है 5 मिनट का काम है, 3,000 रुपीज, तो विच इज नॉट अफोर्डेबल टू द पुअर पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो ये बात सच है कि आप ट्रीटमेंट पहुंचा रहे हो, आप एजुकेशन सबको देने की बात कर रहे हो, इट इज ट्रू, बट द प्रॉब्लम इज यहां पे बड़ी दिक्कत हो गई। और वो दिक्कत ये हुई है कि वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड। तो दैट वाज पॉइंट ई। पॉइंट एफ इज the marginalized section of the population belonging to the scheduled caste, scheduled tribes, other backward caste, women, religious minorities, small farmers, micro entrepreneurs, physically challenged people all would find it difficult to be part of the growth process under the new economic policy। सोशल सोसाइटी के हिसाब से जब और सोचूं तो सोशल सेक्टर जो है वो जिन लोगों को इफेक्ट करता है उसमें ज्यादातर लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, विमेन, पुअर चिल्ड्रन, राइट, पुअर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, ये सब चीज लोग हैं। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे बिजनेसमैन, आपकी गली के नुक्कड़ के ऊपर जो वड़ा पाव का टपरी लगा के बैठा है, वहां तक गवर्नमेंट कैसे पहुंचेगी? उनको गवर्नमेंट क्या लोन दे देगी? फ्रेंड्स हमने सुना है कि 20,000 करोड़ का लोन छोटे छोटे बिजनेसमैन को मिलने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी गली में कोई छोटा सा नावी आता था, नाई, सलून, हेयर कटिंग के लिए, उस तक क्या हेल्प पहुंच पाएगी? उसको कौन सा लोन मिलेगा? वड़ा पाव की टपरी लगा के कोई बैठा था, उसको कौन सा लोन मिलेगा? नॉट पॉसिबल। तो वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं फ्रेंड्स। चेंजेस करने की बात हुई है, वहां तक पहुंचना है, ये कहा गया है, हम पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो इन सब चीजों से बिलोंगिंग करके आ रहे हैं। फिजिकली चैलेंज पीपल, मतलब हैंडीकैप लोग, जिसको अब हम दिव्यांग बोलते हैं, तो वहां तक आप कैसे पहुंचोगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हैंडीकैप लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए लॉकडाउन में कौन सी पॉलिसी बाहर आई, कौन सा रूल, कौन सा हेल्प बाहर आया? आप कैसे उन तक हेल्प पहुंचाओगे? क्योंकि वो तो हेल्प लेने बाहर आ भी नहीं पाएंगे, दे आर हैंडीकैप। तो ये सब चीजें ज्यादा दिक्कत करने लगी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो रिफॉर्म की बात हुई थी, वो जो बेनिफिट यहां तक पहुंचाने की बात हुई थी कि अदर बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, पुअर चिल्ड्रन एंड वीमेन को, रिलीजियस माइनॉरिटी, आपका जो माइनॉरिटी होता है रिलीजियस माइनॉरिटी, ओके, बौद्ध लोग, जैनिज्म, इस्लाम, तो वहां तक सब हेल्प नहीं पहुंच रही है। हम फिजिकली चैलेंज पीपल, मैंने हैंडीकैप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनकी हेल्प हम कर पाए, वो सब नहीं हो पा रहा है।
तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस काफी किए गए, पर उसकी इफेक्ट हमें वो नहीं मिली जो हम सोच रहे थे। द गवर्नमेंट एनेक्टेड लेजिस्लेशंस, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बदल दिए, लेजिस्लेशन लॉ लेकर आए नए नए, जैसे कि लाइक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इन द ईयर ऑफ 2005 गवर्नमेंट ये कायदा लेकर आई, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। गांव में हर एक फैमिली में से हर एक मेंबर, एटलीस्ट एक मेंबर को जॉब दिया जाएगा गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दिस जॉब। एटलीस्ट 6 महीनों के लिए उनको काम दिया जाएगा और मजदूरी दी जाएगी। ये इस कायदे का मकसद था फ्रेंड्स। ओके, एक और कायदा वो लेकर आए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फ्रेंड्स 2009 में ये कायदा लाया गया कि हर किसी को पढ़ने का हक है। अगर हमने कभी सुना हो सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। 0 to 14 ईयर्स के बीच में, सॉरी 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन है, एजुकेशन टू ऑल। ओके, ईच वन टीच वन, मतलब हर एक किसी एक को पढ़ाना लिखाना सिखा दे। तो ये हक हो गया कि गरीब के गरीब बच्चे को भी म्यूनिसिपल में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलना चाहिए। ओके, इंट्रोड्यूस्ड टारगेटेड एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स टू मीट द ह्यूमन डेवलपमेंट challenges posed by the economic reforms। फ्रेंड्स जो रिफॉर्म्स हम लाए थे उस पर टारगेट रखने की बात हुई अब से कि एक टारगेट फिक्स कर दो कि हम इतने साल में यहां तक पहुंचेंगे। एग्जाम्पल, ये सोचा गया था कि 2015 तक में हम पोलियो से लड़के उसको खत्म कर दे, मतलब अब कोई पोलियो का नया केस नहीं आना चाहिए। एक टारगेट था ये, राइट फ्रेंड्स। अब भी अगर आपने कभी सुना हो लेटेस्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, राइट ना फ्रेंड्स। इसमें एक टारगेट रखा गया है कि 2035 तक, 2035 तक में हम ये ट्राई करेंगे कि हायर एजुकेशन में जो बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, अब भी वो रेशियो 26% है, उसको 50% तक लाएंगे। व्हाट डज इट मीन फ्रेंड्स? 12th के बाद बच्चे जो पढ़ाई छोड़ते जाते हैं, सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जो आगे पढ़ाई करते हैं। 12th के बाद आगे F5 S5 कंटिन्यू करते हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये टारगेट रखा गया है कि 2035 तक में हम इस रेशियो को बढ़ा के 50% पे लाएंगे। मतलब 26% भी है तो 14% और बढ़ाया जाए, सॉरी 24% और बढ़ाया जाए। मतलब जितने लोग 12th में है उसमें से आधे लोग एटलीस्ट डिग्री लेके निकलेंगे बाहर। तो ये पर्पस के लिए कुछ बातों को चेंजेस पे लाया जा रहा है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट पर्पस। ओके, तो रिफॉर्म में जो जो चीजें रह जाती है उसको और इम्प्रोवाइज करने की बात है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। फ्रेंड्स प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एजुकेशन बोले तो 4th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद 5th to 8 अभी जो पॉलिसी लाएगी उसके तहत। ओके, 6, 7, 8 3 साल रखे, बाद में 9th to 12th 4 साल, बाद में 13, 14, 15 और बाद में 1 साल और। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ये सिस्टम में डिवाइड किया गया, इस तरीके से इसको लाया जाएगा। द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, गवर्नमेंट रन्स हॉस्पिटल, म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल जो होती है, राइट, जहाँ पे कोरोना का इलाज बहुत सस्ते में करने की बात होती है, करेक्ट। अगर आपको पता हो तो टीबी का जो दवाई है, टीबी का दवाई वो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 32 रुपीज का एक दिन का दवाई का खर्चा है और कम से कम 8 महीने वो दवाई लेनी पड़ती है जिसको टीबी हुआ हो, रेगुलरली 8 months डेली, और 32 रुपीज का एक दिन का खर्चा है दवाई का, बट इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल, दैट इज म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। ओके, तो ये सब अच्छी चीजें है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो इन चीजों को लेकर हम काफी अब आगे बढ़ चुके हैं, राइट। यूएन स्टेटेड, यूनाइटेड नेशन जो है, अब उन्होंने क्या कहा, तो यूएन स्टेटेड mere economic growth should include everyone with goals such as children,
फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। यूनाइटेड नेशन ये बोल रहा है कि जब आप वर्ड यूज करते हो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब माल न्यूट्रिशन, कुपोषण नहीं होना चाहिए बच्चों में। जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पहुंचाया जाए ताकि बच्चा हेल्दी आए, वो माल न्यूट्रिशन कुपोषण ना हो। एनवायरमेंट को संभाला जाए, इसलिए पेड़ पौधे उगाने की आजकल बात चलती रहती है। जेंडर इक्वलिटी, लड़के ज्यादा होते हैं लड़कियां कम होती है। ओके, कन्या भ्रूण हत्या कभी आपने सुना हो, राइट? कुछ बैकवर्ड एरिया में आज भी ऐसा होता है, प्रेगनेंसी में पता चल जाए लड़की होने वाली है तो उसको एबॉर्शन कराने की बात होती है। अब ये नहीं चलेगा, जेंडर इक्वलिटी की बात है फ्रेंड्स। जितने बॉयज है उतनी गर्ल्स होनी चाहिए सामने, तब जाके वो सोशल स्ट्रक्चर ठीक से परफॉर्म कर पाए। तो यूनाइटेड नेशन ने भी इन चीजों को अब कहा गया, गाइडलाइंस दी है कि यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो ये एक छोटा सा अपना चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसमें जो चेंजेस लाए गए, दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू are taking care of yourself. Please take care. Thank you so much. Soon I'll approach you again. Okay.